آج ہم بات کریں گے انٹروڈکشن ٹو فائر وال پہ. دیکھتے ہیں کہ فائر وال ہے کیا اور اس کا جو جنرل تھریٹ ٹائپس ہم نے ابھی تک پڑھی تھیں ان تھریٹس کو کاؤنٹر کرنے میں کیا رول ہے. اچھا جی، سو واٹ از اے فائر وال. اس پر اگر اس کی جو سمپلسٹ موسٹ ڈیفینیشن ہے اس کو دیکھا جائے تو وہ یہ کہتی ہے کہ اٹ از اے سسٹم or group of systems that manages access between two or more networks based upon administrator defined policies. یعنی کوئی ایسا سسٹم یا ملٹیپل سسٹمز کا مل کر ایک ہارمونائزڈ ورکنگ سسٹم جو دو یا دو سے زیادہ نیٹورکس کے مابین ہونے والی ایکسیس کو ایڈمنسٹریٹر کی بتائی گئی پالیسیز کے مطابق مینج کرے. اس کو ہم فائر وال کہیں گے. یوزلی کسی بھی فائر وال سسٹم کے ارد گرد منیمم دو نیٹورکس جن میں سے ایک کو ہم ان سائڈ اور ایک کو آؤٹ سائڈ کہتے ہیں ہوتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ کوئی لمٹ نہیں ہے. بہرحال وہ جتنے بھی اور نیٹورکس فائر وال سسٹم کے اراؤنڈ آئیں گے وہ ایک ہو یا دو ہوں، تین ہوں یا ملٹیپل ہوں، ان سب کو ہم ڈی ایم زی کہتے ہیں. ڈی ایم زی اسٹینڈس فار ڈی ملٹرائزڈ زون. اچھا، اب ٹپیکل فائر وال ڈپلائمنٹ میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ان سائڈ زون کے اندر وہ تمام ریسورسز کو یا ایسٹس کو رکھا جاتا ہے جو ریسورسز یا ایسٹس کسی اور طرف سے ایکسیسیبل نہیں ہوتے، یعنی ان کو کسی نے دوسرے نیٹورک سے ایکسیس نہیں کرنا بلکہ اسی نے صرف ان نیٹورکس کو ایکسیس کرنا ہے. ویئر ایز جو ڈی ایم زی نیٹورک ہوتے ہیں ایک یا ایک سے زیادہ، ان میں ہم جو بھی ریسورسز رکھتے ہیں ان ریسورسز کو امکان ہوتا ہے کہ ڈرٹی نیٹورک یا آؤٹ سائڈ نیٹورک سے کوئی ایکسیس کر سکے. سو ایز این ایگزامپل ہمارے ویب سرورز کارپوریٹ کے یا ایف ٹی پی سرورز یا ہمارے ای میل سرورز جس کو ریموٹلی لوگوں نے ایکسیس کرنا ہے، ان کو یوزلی ہم ڈی ایم زی زون میں پلیس کرتے ہیں. یہ ایک ٹپیکل ڈیزائن ہے بٹ وی ول کیپ آن ٹاکنگ اباؤٹ ڈیزائن پرنسپلز ان اپ کمنگ سلائڈس. تو ابھی یہ کنکلوڈ ہوا کہ فائر وال جو ہے وہ کسی بھی ایک سنگل سسٹم یا ایک کولیبوریٹڈ سسٹم کا نام ہے، گروپ آف سسٹمز کا نام ہے جن کی آپس میں کولیبوریشن ہے، اور اس کا ایک ہی کام ہے کہ اس نے ایکسیس کو بٹوین ٹو اور مور نیٹورکس ایک ضابطے میں رہ کر مینج کرنا ہے، اور وہ ضابطہ اس کو اس کا ایڈمنسٹریٹر بتائے گا، اور ایڈمنسٹریٹر کو وہ پالیسی کون بتائے گا کہ یہ کر دیا جائے، کسی کو روک دیا جائے، کسی کو جانے دیا جائے. یہ ہم نے لاسٹ کنکلوڈ کیا ہے، یہ ہمیں سیکیورٹی پالیسی رائٹر بتائے گا. ایڈمنسٹریٹر خود سے پالیسی بنانے کا مجاز نہیں ہے، اس کو پالیسی انسٹرکٹ کی جاتی ہے اور یہ اس پالیسی کو صرف اور صرف اس سسٹم میں کنفیگر کرنا جانتا ہے، یہ اس کا کسٹوڈین ہے. بٹ پالیسی کیا ہوگی یہ ایڈمنسٹریٹر کو بھی ڈاؤن لوڈ کی جاتی ہے، اور جہاں ایڈمنسٹریٹر خود ہی پالیسی کو وضع کرتا ہے اور یہ اس کی انسٹنکٹ پر بس مبنی ہوتا ہے، وہاں پہ بریچ کے امکان بھی زیادہ ہوتے ہیں. یوزلی ایک سیکیور انوائرمنٹ کا تقاضا یہی ہے کہ پالیسی ساز لوگ الگ ہوں، وہ گروپ الگ ہو، وہ اس کا جو تھاٹ پروسیس ہے وہ بالکل ایک ڈفرینٹ معیار کا ہو، وہ ہر طرح سے چیزوں کو پرکھ کے ایک ایونچولی
काउंटर मेजर डिजाइन करे और उस काउंटर मेजर को फिर एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले कर दिया जाए जो उसको ट्रांसलेट कर दे इनटू द पॉलिसी सेट दैट अ फायरवॉल सिस्टम अंडरस्टैंड्स। और एडमिनिस्ट्रेटर जो है फिर ये उसकी एक्सपर्टीज पे डिपेंड करता है कि वो उसको ठीक ठीक ट्रांसलेट करता है एज पर द सिस्टम टूल किट। ऐसा भी होता है कि पॉलिसी बहुत अच्छी बनी हुई होती है लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर उसकी कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त चंद चीज़ें नहीं ठीक से कॉन्फ़िगर करता जिसकी वजह से भी ब्रीच का इम्कान बनता है। और इसको भी हमने एज इवेलुएट किया था एज अ रीजन ऑफ थ्रेट्स या ब्रीचेस, जिसमें कॉन्फ़िगरेशन वीकनेस लिखा हुआ था। तो बहरहाल एडमिनिस्ट्रेटर का ये काम है कि जो भी पॉलिसी उसको दी जाए वो उसको बड़े ही विजिलेंट तरीके से एज इट इज इस सिस्टम की समझ बूझ के तहत उसको ट्रांसलेट कर दे और उसमें कोई चीज हज़फ ना होने पाए। अब ये जो फायरवॉल सिस्टम है इनकी टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। तमाम टाइप्स का एक ही मकसद है, कॉमन मकसद है, और वो कॉमन मकसद ये है कि उसने एक्सेस को मैनेज करना है बिटवीन टू और मोर नेटवर्क्स। जी सही, डीएमजी आगे डिस्कशन में आएगा, तब उस पर बात इंशाल्लाह करेंगे। फिलहाल डीएमजी एक ऐसा जोन है फायरवॉल के गिर्द जिसमें हम उन सिस्टम्स को या कंप्यूटर्स को या रिसोर्सेज को रखते हैं जिनको डर्टी नेटवर्क से या अनट्रस्टेड नेटवर्क से एक्सेस करने की ज़रूरत होती है। हम ऐसे तमाम रिसोर्सेज को डीएमजी जोन में रखते हैं, बट तफसील से इंशाल्लाह इस पे आगे बात आएगी। तमाम फायरवॉल्स एक ही मकसद के लिए बनी है और वो मकसद ये है कि इन्होंने नेटवर्क्स के माबैन होने वाली कम्युनिकेशन को या एक्सेस को मैनेज करना है एज पर एडमिनिस्ट्रेटर डिफाइंड पॉलिसीज। अब एडमिनिस्ट्रेटर जब पॉलिसी बनाएगा तो जो पॉलिसी है उसका जो थीम है या द वे दैट पॉलिसी विल वर्क वो मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। डिपेंड करता है वो आपकी फायरवॉल किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करती है या किस तरह की टेक्नोलॉजी पर मबनी है। सो बात ये कर लेते हैं कि जो फायरवॉल की टाइप्स हैं ये काम कैसे करती हैं। फायरवॉल की मेजरली 3 टाइप्स हैं। पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल है या पैकेट फिल्टरिंग टेक्नोलॉजी पर चलने वाली फायरवॉल है, प्रॉक्सी सर्वर टेक्नोलॉजी पर चलने वाली फायरवॉल है और स्टेटफुल पैकेट फिल्टरिंग टेक्नोलॉजी पर चलने वाली फायरवॉल है। अब इन तमाम टेक्नोलॉजीज को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है। पैकेट फिल्टरिंग और प्रॉक्सी सर्वर ये दोनों फर्स्ट जनरेशन ऑफ फायरवॉल्स भी कहलाती हैं, यानी शुरू की जो फायरवॉल्स हैं जो नेटवर्क्स के अंदर थ्रेट्स को फील करते हुए डिज़ाइन की गई और उनको एक प्रोडक्ट की शक्ल दी गई। जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें आगे 2 टाइप्स हैं, एक पैकेट फिल्टरिंग है, एक प्रॉक्सी सर्वर है। अब पैकेट फिल्टरिंग और प्रॉक्सी सर्वर की जो फंक्शनैलिटी है उसके अंदर जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि पैकेट फिल्टरिंग ट्रांसपेरेंटली वर्क करती है। ट्रांसपेरेंट से क्या मुराद है कि 2 कंप्यूटर्स के दरमियान अगर फायरवॉल सिस्टम आ जाए और ये फायरवॉल सिस्टम में से जब ट्रैफिक पास ऑन हो ए और बी की, तो इनकी जो ट्रैफिक है वो मुखातिब होगी एक दूसरे के साथ। इनकी जो कम्युनिकेशन है वो एक दूसरे के साथ टारगेटेड है। ऐसा नहीं है कि ए फायरवॉल को कुछ कह रहा है और फायरवॉल इन रिटर्न उस रिक्वेस्ट को अपने रंग में ढाल के बी को सेंड कर रही है, यानी दरमियान में कोई मॉडिफिकेशन हो रही है। ऐसा नहीं है। द ट्रैफिक गोज प्लेन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। हाँ, रास्ते में उसको स्कैन किया जाता है पैकेट फिल्टरिंग प्रिंसिपल के तहत। दिस मीन्स ट्रांसपेरेंट।
प्रॉक्सी सर्वर फायरवॉल के अंदर, अच्छा जी, बात ये हो रही थी कि जो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल्स हैं ये ट्रांसपेरेंट हैं और इनके अंदर जो आप डेटा सेंड और रिसीव करते हैं वो डायरेक्टली बिटवीन ए एंड बी हो रहा होता है, फायरवॉल दरमियान में एक पास थ्रू है। जस्ट लाइक एक स्विच या एक राउटर, उसमें जब आप अपनी मशीन्स को कनेक्ट करते हैं या अपने नोड्स कनेक्ट करते हैं तो आप इसमें से पास थ्रू हो रहे होते हैं। आपकी मंजिल राउटर या स्विच बजाते खुद नहीं होता, आप उसकी सर्विसेज यूज करके उसमें से गुजर जाते हैं। तो ये है पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल्स, यानी ट्रांसपेरेंट होती हैं। वेयरएज प्रॉक्सी सर्वर फायरवॉल्स ट्रांसपेरेंट नहीं होती। प्रॉक्सी सर्वर फायरवॉल्स के अंदर आप दो सिस्टम्स के दरमियान जब इनको हाइल करते हैं तो आपको इन्हीं से मुखातिब होना होता है, आप इन्हीं को रिक्वेस्ट करते हैं और आपको फायरवॉल से ही रिस्पांस मिलता है। आप इसी को रिक्वेस्ट करेंगे और आपको फायरवॉल से रिस्पांस आएगा। सो फायरवॉल दरमियान में पूरे तरीके से हाइल है, यानी आपके OSI रेफरेंस मॉडल की 7 लेयर्स, लेयर 7 से लेकर 1 तक आप फायरवॉल से मुखातिब कर रहे हैं। और यहां पर जो पॉलिसीज हैं उनके तहत आपकी रिक्वेस्ट के अगेंस्ट देखा जाएगा, परखा जाएगा कि उसको आगे प्रोसेस किया जाए या मैनेज उसको किया जाए या नहीं किया जाए, उसका डिसीजन लिया जाएगा। लिहाजा ये प्रॉक्सी सर्वर फायरवॉल है। मेजर डिफरेंस इनका ये है, प्रॉक्सी सर्वर फायरवॉल एप्लीकेशन लेवल पर काम करती हैं, वेयरएज पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल जो हैं वो नेटवर्क लेवल पर या सर्किट लेवल पर काम करती हैं। नेटवर्क लेवल का मतलब है लेयर 3 और सर्किट लेवल का मतलब है लेयर 3 के साथ साथ लेयर 4, यानी कि पोर्ट नंबर्स भी। वेयरएज जो प्रॉक्सी सर्वर फायरवॉल्स हैं वो लेयर 7 पर काम करती हैं। सो इन अदर वर्ड्स, अगर आपने HTTP कम्युनिकेशन करनी है बिटवीन 2 पार्टीज और आप इनके दरमियान फायरवॉल हाइल करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये फायरवॉल प्रॉक्सी सर्वर कैटेगरी की हो, तो आपको देखना होगा कि इस फायरवॉल के अंदर जो HTTP का सॉफ्टवेयर बर्न है या HTTP की जो एप्लीकेशन लेवल गेटवे है इसमें, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, वो HTTP प्रोटोकॉल को किस हद तक समझती है वो एप्लीकेशन लेवल गेटवे, क्योंकि आपने उससे मुखातिब होना है और उसने अलाउड टॉक आगे पास ऑन करनी है और डिसअलाउड टॉक यहाँ पे डिस्कार्ड कर देनी है। दिस इज हाउ प्रॉक्सी सर्वर फायरवॉल्स वर्क। अब इसके अंदर फॉरवर्ड प्रॉक्सी भी होती है, रिवर्स प्रॉक्सी भी होती है, उस पर बात हम अभी करते हैं। जी, मुदस्सर कह रहे हैं कि प्रॉक्सी सर्वर फायरवॉल की कोई एग्जांपल्स दे दें। प्रॉक्सी सर्वर फायरवॉल की जो दौरे हाजिर की लेटेस्ट 3 एग्जांपल है वो वेब की है, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स। इनका बहुत ज्यादा ट्रेंड है आजकल। तो वेब एप्लीकेशन फायरवॉल को आप देख लीजिए, ये प्रॉक्सी सर्वर फायरवॉल की एक शक्ल है। वकास कह रहे हैं जस्ट लाइक हॉटस्पॉट्स, थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे हॉटस्पॉट से क्या मुराद है? देखिए PF सेंस जो है, अली रजा लिख रहे हैं NGINX 40 WAF, PF सेंस, स्क्विड, इन तमाम में से अगर मैं स्क्विड को ले लूं और मैं 40 WAF को ले लूं तो आप इनको कोरिलेट कर सकते हैं प्रॉक्सी सर्वर फायरवॉल के साथ। अगर PF सेंस की बात करें तो PF सेंस इज बेसिकली अभी तक क्योंकि हमने स्टेटफुल पैकेट फिल्टरिंग को नहीं टच किया तो चलिए कह लेते हैं कि वो काइंड ऑफ अ पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल है, वो ट्रांसपेरेंट है। और PF सेंस के अंदर बिल्ट इन स्क्विड भी है। PF सेंस हैज अ स्क्विड इंजन बिल्ट इन, तो जब आप उसको यूज कर रहे हो तो ये PF सेंस हैज अ प्रॉक्सी सर्वर भी काम कर सकता है, बट दैट इज एक्चुअली स्क्विड, दैट इज नॉट PF सेंस इटसेल्फ।